Good morning, guys. So basically, this video is on mensuration part 2 beta. In the previous video, I had done mensuration part 1. So today we are going to discuss about some quadrilaterals. Last lecture was all about triangles. This lecture is about quadrilaterals. So let's get started beta. Part 2 video on mensuration beta. Okay guys, this is the figure given. A, B, C, D, E, A, B, C, D and E given. AX is equals to BX is equals to 6 centimeter. ठीक है बेटा. DE is equals to DC is equals to 5 centimeter बेटा. Okay, so it indicates an isosceles triangle. ठीक है बेटा. DX is total 9 centimeter बेटा. The total DX का height is 9 centimeter and DX is perpendicular to EC and AB बेटा. DX is perpendicular to AB and AC. Very easy sum. Fine बेटा. If any data point I am missing out, ठीक है बेटा. EC and this is 4 centimeter, 4 centimeter. Fine beta. So this is the data point given beta. First, by Pythagoras theorem beta, take this triangle beta, Y, C and D beta. ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है बेटा. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखोगे बेटा? बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे बेटा. DC स्क्वायर इज इक्वल टू dy स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर गाइस. ठीक है बेटा. DC स्क्वायर इज इक्वल टू dy स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर. DC स्क्वायर इज इक्वल टू dy स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर बेटा. 5 square is equals to 4 square plus dy square. Okay, so 25 minus 16 is equals to dy square. Dy square is equals to 9. Dy is equals to 3 centimeter. Okay बेटा, फर्स्ट स्टेप समझ में आया. dy को मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया. सेकेंड स्टेप बेटा dx is made up of dy plus xy. So 9 is made up of 3 plus xy. So xy is 6 centimeter. Third step. Beta, can I find area of triangle DEC? Half into base into height. Half into base into height. कितना है? 3. So 12 centimeter square. Beta, area of trapezium. Area of trapezium. EC, area of trapezium A B C E, A B C E बेटा. ओके, कैसे फाइंड करेंगे बेटा? हाफ इंटू बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है बेटा? EC एंड AB है बेटा, इंटू हाइट. हाफ इंटू बेटा EC कितना है बेटा? 8. AB कितना है बेटा? 12. और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? xy. कितना है डिस्टेंस? xy. हाइट कितना है? xy विच इज 6. सो 20 इंटू 3 विच इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. लास्ट स्टेप बेटा. देखो एरिया ऑफ फिगर A B C D E is made up of area of triangle DEC plus area of trapezium ABCE, which is 12 plus 60, which is 72 centimeter square. Okay my child, समझ में आया? Pause the video, go through the sum
एंड मूव टू नेक्स्ट सम. ठीक है बेटा. बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, मेरे साथ बोलो, रिपीट करो. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. 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 बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is 64. PR is 10 centimeter. Entire PR is how much beta? 10 centimeter. If ST is perpendicular to PR, ST is perpendicular to PR. Find the length of ST. Find the length of ST. Beta, please remember, diagonals of parallelogram divides it into two equal triangles. ठीक है बेटा? Diagonals of a parallelogram. Diagonals of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. Two triangles of equal area. Therefore, area of triangle SPQ will be half of area of parallelogram PQRS. मतलब हाफ ऑफ 72 कितना हुआ बेटा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉरी 64 है बेटा, ये 64 है. सो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. बराबर मेरा बच्चा. ये अपना फर्स्ट स्टेप हुआ. सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल SPR इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो h कितना होगा 64 अपॉन 10 विच इज 6.4 सेंटीमीटर. Therefore length of ST is 6.4 centimeter. Easy बेटा. What was the concept बेटा? पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, डायगोनल्स डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. ओके, तो 64 का क्या हो गया, आधा हो गया 32. एंड देन वी नीड टू फाइंड परपेंडिकुलर ST बेटा, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इजी बेटा. चल थर्ड सम बेटा. फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रेपेजियम बेटा. ठीक है, ये पूरा 40 है बेटा. ये 25 सेंटीमीटर. ये 17 सेंटीमीटर बेटा. इफ AB is 25, so DM also will become 25 centimeter. Opposite sides of rectangle you can say are equal बेटा. तो कैन आई से DC is made up of DM plus CM बेटा. तो 40 is made up of 25 plus CM. तो CM is 15 सेंटीमीटर. सेवनटीन सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. बाय पाइथागोरस थ्योरम आई विल फाइंड बेटा BM विच इज H. उसको नाम देता हूँ बेटा. तो मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल BMC एंगल M is 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem
BC square is equals to BM square plus CM square. 17 square is equals to 15 square plus 8 square. 289 is equals to 225 plus 8 square. 8 square is 64, so h is 8 centimeter. H is 8 centimeter beta. Then last step beta, area of trapezium ABCD will be half into sum of parallel side beta, sum of parallel side into height. So half into bracket में 25 plus 40 into height h कितना है 8, 65 into 4. Okay guys, understood मेरे बच्चा? Are you comfortable beta? Guys, getting it beta? Height perpendicular distance find करना बहुत important है बेटा, which is equals to half into sum of parallel side into height. चल let us move to the fourth sum बेटा. बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या सीखा आपने? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 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 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. Almost same sum beta. 30 centimeter, this is 50 centimeter and this is 29 centimeter. PQRST बेटा, PQRST, ठीक है बेटा. बेटा ये 30 है तो ये भी 30 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा? पूरा 50 है बेटा, इधर से इधर पूरा 50 है, ये 30 है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा? फर्स्ट स्टेप SR इज मेड अप ऑफ ST प्लस TR, सो 50 इज मेड अप ऑफ 30 प्लस TR, सो TR इज मेड अप ऑफ 20 सेंटीमीटर. ओके गाइस, फिर हम लोग वही ट्राइंगल लेके TRQ, ये 29 सेंटीमीटर है बेटा, ये कितना है बेटा? TR 20 सेंटीमीटर है और ये हाइट है बेटा. बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखने का, बाय पाइथागोरस थ्योरम QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. ओके, सो 29 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. 841 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 400. 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441, सो एज इज 21 सेंटीमीटर. हाइट कितना बेटा? 21 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है. हाइट कितना बेटा? 21 सेंटीमीटर है. नाउ थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 30 प्लस 50 इंटू हाइट 21, हाफ इंटू 80 इंटू 21, 40 इंटू 21 कितना होता है बेटा? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट बेटा? सेम सम था. वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज सिंपल, बट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. यू शुड नो थॉरली.
पी क्यू आर एस एन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस। ये 4 सेंटीमीटर बेटा, ये 5 सेंटीमीटर, एंटायर इज 16 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। ओके, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पेरीमीटर, दोनों ढूंढना है बेटा। बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ढूंढना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज टू पैरेलल लाइंस आर गिवन, पी क्यू एंड एस आर, and height, मतलब distance between the two parallel lines are also given. So area of trapezium PQRS is not a difficult task. half into sum of parallel side बेटा, parallel side कौन सी है, PQ and SR, and दोनों के बीच में distance कितना है बेटा, QR. $50 centimeter square, कितना, 50 centimeter square. Now to find perimeter बेटा, draw PM perpendicular to SR, draw PM perpendicular to SR बेटा, ठीक है। Therefore PQRM is a rectangle, opposite sides are equal, therefore PM is equals to QR is equals to 5 centimeter and PQ is equals to RM is equals to 4 centimeter. SR is made up of बेटा पूरा SR, अभी ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर बन गया बेटा, ये पूरा 16 सेंटीमीटर है। 16 is equals to SM plus 4, तो SM कितना हो जाएगा बेटा, 12 सेंटीमीटर। SM कितना हो जाएगा बेटा, 12 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर बेटा। Now what is perimeter बेटा, sum of all the side. perimeter का बेस्ट डेफिनेशन होता है sum of all the sides बेटा। सो हर साइड को ऐड करो बेटा, PQ, QR, RS and PS। 4 plus 5 plus 16 plus 13। Okay my child, please go through sum number 1 to 5, pause the video, हाँ बेटा pause the video, आराम से देखो बेटा, अंडरस्टैंड करो, धीरे 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 अंडरस्टैंड करो, इजी सम्स है बेटा। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद वन ऑफ द चैलेंजिंग सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, बोथ ऑफ देम आर वेरी चैलेंजिंग सम, ठीक है। So please make sure you understand thoroughly. Pause the video for 6th and 7th sum, both I am talking about. Pause the video, repeat it again and again beta. For 6th and 7th sum, make sure you understand the sum. Try to solve on your own. Directly strike नहीं होगा बेटा, ठीक है। आराम से patiently I'll teach you. So make sure you go through 6th sum and the 7th sum very thoroughly. Patiently सुनो, स्टार मार्क करके रखो। इन एग्जाम आने का चांसेस वेरी मिनिमल, बट इफ आस्क्ड यू शुड एबल टू आंसर इट, ठीक है। बेटा दे गिवन ट्रेपेजियम वेयरइन उन्होंने ऑल साइड्स आर गिवन बेटा, क्या दिया बेटा, ऑल साइड दे दिया है।
ए बी सी एंड डी बेटा, ठीक है। ए बी का लेंथ कितना दिया है बेटा 25 सेंटीमीटर, ए बी का कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, ए डी का 25 सेंटीमीटर, ए बी 60, बी सी इज 26 सेंटीमीटर एंड सी डी 77 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड इट्स एरिया। परफेक्ट बेटा बच्चा। अभी देखो ये दोनों पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप बेटा जो आपको करना है, ओके, फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, ड्रॉ अ लाइन BE which is parallel to AD. Draw BE parallel to AD. Therefore, quadrilateral ABED is a parallelogram. क्यों बेटा? Since both opposite sides are parallel. ये और ये लाइन पैरेलल थे और ये लाइन भी पैरेलल. Since both opposite sides are parallel. Okay, are you okay बेटा with this? ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ये कंस्ट्रक्शन किया. Therefore, I can say AB is equals to ED is equals to 60 centimeter and AD is equals to BE is equals to 25 centimeter. Opposite sides of parallelogram are equal. क्या रीजन लिखोगे बेटा? Opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. Okay मेरा बच्चा? Are you comfortable till this point बेटा? Are you okay with this point बेटा? फाइन बेटा। अभी देखो बेटा, ये 25, ये 25, ये 60, ये 60 बेटा, ठीक है। पूरा DC इज मेड अप ऑफ DE प्लस EC बेटा, तो 77 इज मेड अप ऑफ 60 प्लस EC, therefore EC is 17 सेंटीमीटर, EC is 17 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? EC 17 सेंटीमीटर है। EC कितना है बेटा? 17 सेंटीमीटर है बेटा। ओके, अभी हम लोग ना ये ट्राइंगल के ऊपर फोकस करके बेटा, B, E एंड C बेटा, ये 17 सेंटीमीटर है, ये 26 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है बेटा। ओके, तो पहले विल ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। ओके, where A is 25 centimeter, B is 17 centimeter, C is 26 centimeter बेटा। ओके, सो सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा? A plus B plus C upon 2, sum of all the sides divided by 2 बेटा, 68 upon 2 कितना है बेटा? 34 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट स्टेप समझा बेटा आपको? ये फर्स्ट मेजर स्टेप था बेटा। क्या था? सब मेजरमेंट्स फाइंड करो, कंस्ट्रक्शन करना मत भूलना। दिस वाज अ वेरी मेजर स्टेप। ड्रॉ BE पैरेलल टू AD, ड्रॉ BE पैरेलल टू AD, सो दिस बिकेम अ पैरेललोग्राम एंड दिस बिकेम अ ट्रायंगल। मेजरमेंट 60 60 25 25, ये 70। नाउ ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। बेटा, S minus A, S minus B, S minus C। S कितना है बेटा? 34 बेटा। 34 माइनस 25 कितना होता है? 9। 34 माइनस 17 कितना होता है? 17। 34 माइनस 26 कितना होता है? 8। ओके बेटा, 34 को मैं 17 टू ज़ा लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 into 3 लिख सकता हूँ इंटू 17, और 8 को मैं 2 into 2 into 2 लिखता हूँ। पेरिस बनाओ, 17 बार आएगा, 3 बार आएगा, 2 बार आएगा, 2 बार आएगा बेटा। ओके, सो बेसिकली यू गॉट एरिया एज 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बेटा एरिया मिला ट्राइंगल का? 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बेटा, फ्रॉम द एरिया कैन आई फाइंड द हाइट बेटा। अभी सेम एरिया मैंने लिया, ट्राइंगल BEC लिया बेटा,
फॉर सेम ट्राइंगल BAC बेटा, फॉर सेम ट्राइंगल BAC बेटा, विद द बेस क्या है बेटा 17 सेंटीमीटर. ओके, आई ट्राई टू फाइंड द एरिया. एरिया इज हाफ इंटू BM इंटू EC बेटा. See, area of triangle can be found by Heron's formula, also by half into base into height. I am more interested in finding the height बेटा. एरिया अपने पास 204 ऑलरेडी मालूम पड़ गया बेटा. सो हाफ इंटू 17 इंटू हाइट BM. तो आपको BM कितना मिलेगा बेटा 204 इंटू 2/17 विच इज हाउ मच बेटा, विच इज 24 सेंटीमीटर. कितना है बेटा 24 सेंटीमीटर. फाइन. नाउ लास्ट स्टेप बेटा. अभी ट्रेपेजियम का हाइट मिल चुका है बेटा, देखो ध्यान से. वी नो द हाइट बेटा. नाउ हाइट इज 24 सेंटीमीटर. DC and BA are the parallel sides beta, which is 60 and 77 centimeter. So area is half into sum of parallel sides into height. Half into 137 into 12. ठीक है, 137 12 तक. पूरा सम अच्छे से देखो बेटा, ध्यान से देखो. फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड बेटा. ओके गाइस, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड ध्यान से देखो. बाय मिस्टेक आई डिड 7 सम पहले, ठीक है. देन विल डू द 6 सम बेटा. ठीक है, आई डिड 7 सम, तो 7 सम पे फोकस करो राइट नाउ. नाउ दिस वाज अ trapezium given ABCD where all four sides values were given. I'll repeat one more time this sum, so ध्यान से देखना. All four sides value were given 60, 25, 26 and 77. ठीक है बेटा. तो मैंने क्या किया, I drew one line which is parallel to AB. तो this two line became parallel बेटा, this two line became parallel, this two line became parallel बेटा. तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया. इससे ये 60 तो ये 60, ये 25 तो ये 25. Now this is 60, the remaining will be 70. Now focus on triangle BAC बेटा. ये 3 साइड दिया है आपको बेटा. हाँ, find the area by Heron's formula. 204 मिला. ठीक है. Now we all know area of triangle can also be half into base into height. Half into base into height. एरिया है अपने पास, बेस है, हाइट मिल जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर. कितना होगा बेटा वो 24 सेंटीमीटर होगा. कितना होगा बेटा 24 सेंटीमीटर होगा बेटा. ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा 24 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. नाउ वी नो हाइट, वी नो बेस. ठीक है, 60 एंड 77. ठीक है बेटा. सो यूजिंग बोथ द डेटा पॉइंट आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. Okay, half into sum of parallel side into height, half into sum of parallel side into height बेटा. Okay, are you okay बेटा till this point बेटा? Okay, ये मैंने 7 sum किया बेटा. 6 sum करते हैं अभी. It is same way we have to do it. 6 and 7 sum both are same sum बेटा. ठीक है. We have to do it both the sum in a similar manner. We have to do 6 and 7 sum in the similar manner बेटा. We have to do 6 and 7 sum in a similar manner. ठीक है. सो चलो फिर से पूरा स्टेप्स हम लोग लिखेंगे. नाउ यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड इन फैक्ट आई विल अप्रिशिएट इफ यू ट्राई ऑन योर ओन. सी व्हेनेवर दिस सम इज बीइंग आस्क्ड, मेरे दिमाग में क्या आता है मालूम है. फर्स्ट स्टेप आई डिवाइड द सम इनटू 4 मेजर स्टेप. फर्स्ट स्टेप पैरेलल लाइन बनाने की, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करने का. ठीक है, सब मेजरमेंट्स लिखने का. सेकंड स्टेप एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला. थर्ड स्टेप यूजिंग दैट एरिया फाइंड द हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एंड वो हाइट लेके फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ढूंढो. बराबर बेटा. चलो हाँ, तो वही स्टेप्स फॉलो करते हैं 6 सम में बेटा. आई डिड 7 सम पहले बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम. ये 25 सेंटीमीटर है बेटा. ABCD. ओके बेटा. ये 20 सेंटीमीटर है बेटा. ये पूरा 76 सेंटीमीटर है बेटा. और CD कितना दिया बेटा 39 सेंटीमीटर दिया. फाइन. चलो गाइस अपना तो चालू हो जाएगा बेटा. फर्स्ट स्टेप
फर्स्ट मेजर स्टेप क्या था बेटा, ड्रॉ DE पैरेलल टू AB. Therefore quadrilateral ABED is a parallelogram, and therefore AD and BE both are equal, which is equals to 20 centimeter. बराबर बेटा, and AB and DE both are equal, which is 25 centimeter, which is 25 centimeter. Opposite sides of parallelogram are equal. रीजन में क्या लिखोगे, opposite sides of parallelogram are equal. बराबर बेटा. Now second step, BC is made up of BE plus EC. So 76 is made up of 20 plus EC. So EC is 56 centimeter. कितना है बेटा EC? 56 centimeter है guys. ठीक है बेटा. Third. Now second major step बेटा. ये ट्राइंगल BEC पे फोकस करो, ट्राइंगल DEC पे फोकस करो बेटा. ये कितना है बेटा 56 सेंटीमीटर है, ये 39 सेंटीमीटर है, और ये कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर है. हम लोग क्या यूज करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. लेट A be 25 सेंटीमीटर, B 56 सेंटीमीटर एंड C be 39 सेंटीमीटर. सो S क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2. सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो बेटा. 25 प्लस 56 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 करो बेटा. कितना आएगा बेटा 120 अपॉन 2 आएगा, विच इज 60 सेंटीमीटर. ओके, सो एरिया क्या होगा बेटा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ओके, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C बेटा. ओके, तो 60 क्या होता है बेटा 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7. बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉर्म अ पेयर. सो 5 का एक निकला बेटा, 3 का निकला एंड 7 का निकला एंड 4 का निकला बेटा. सो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा. फिर हम लोग क्या बोला था बेटा, थर्ड स्टेप, यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड द हाइट. फाइंड द हाइट DM. फाइंड द हाइट 56 centimeter. Area is nothing but half into base into height. Okay guys, so 420 is equals to half into 56 into DM beta. ठीक है, so DM will be 420 into 2 upon 56. 14 4s are 14 30s are beta. ठीक है, so height कितना है 15 centimeter. And the last step, area of trapezium. Area of trapezium is half into sum of parallel side. Half into sum of parallel side into height. Half into sum of parallel side 20 plus 76 into height 15 beta. So half into 96 into 15. 48 into 15. 48 into 15 कितना होता है बेटा 2. 48 into 15 कितना होता है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बस अपना वही 4 स्टेप्स बेटा. फर्स्ट लाइन DE पैरेलल टू BC, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लो. DE पैरेलल टू AB, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लो बेटा. ऑल द मेजरमेंट्स फाइंड करो. सेकेंड स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलने के बाद आप लोग हाइट फाइंड करोगे. एंड फोर्थ स्टेप, हाइट मिलने के बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ढूंढेंगे. Take 2 minutes, do sum number 6 and 7 again on your own. Do sum number 6 and 7 sum on your own. Do sum number 6 and 7 on your own. Do sum number 6 and 7 on your own guys. Pause the video, repeat it again and again. Pause the video, repeat it again and again. Pause the video beta, repeat again and again. Pause the video beta, repeat again and again. Okay? तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, यू विल बिकम थरो विद इट. इट्स मैटर ऑफ इट्स मैटर ऑफ 1-2 times you are practicing on your own and you will be thorough with this type of sum बेटा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर 4 steps. फर्स्ट स्टेप, पैरेलल बनाना है लाइन. DE पैरेलल टू AB बनाना है. पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना है, सब मेजरमेंट्स लिखने हैं. सेकेंड स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलने के बाद अपने को हाइट ढूंढना है. ओके, हाइट ढूंढने के बाद फोर्थ स्टेप, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ढूंढना है. ओके, सो आई एम प्रीटी मच श्योर यू विल बी प्रैक्टिसिंग 6 sum and 7 sum on your own. प्लीज डू इट बेटा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू 8th sum.
अनलाइकली टू बी आस्क्ड, रियली आई एम टेलिंग यू, 6th and 7th सम मेरे हिसाब से बहुत अनलाइकली है, बट obviously it's a good concept and I always believe you should have that curiosity to learn new concepts, new sums. Eighth sum. Beta PQRS is a trapezium. PQRS is a trapezium beta. PQ is how much beta? 20 centimeter. PR is how much? 61 centimeter. SR is 60 centimeter. And PS perpendicular to SR. PS perpendicular to SR. PS perpendicular to SR. Find its area. बेटा सिंपल है बेटा, ये ट्राइंगल पे फोकस करो, PSR. आपके पास दो मेजरमेंट ऑलरेडी है, 60 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर बेटा. ट्राई टू फाइंड द हाइट PS. ट्राई टू फाइंड द हाइट PS बेटा. ट्राई टू फाइंड द हाइट PS बेटा. PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर. 61 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर. 3721 is equals to 3600 plus PS square. PS square is equals to 121. PS is equals to 11 centimeter. मतलब अपने को जो हाइट चाहिए था PS we got as 11 centimeter. Okay बेटा. Now area of trapezium. बेटा area of trapezium very simple. Sum of parallel side into height. Height मतलब distance between two parallel side. 11 centimeter. This is 60 centimeter. This is 20 centimeter. PQRS very much likely to be asked in exam. ठीक है. So area of trapezium PQRS is equals to half into sum of parallel sides into height. Got it my child? ठीक है बेटा. Are you comfortable बेटा? Fine बेटा. चलो let us move to 9th sum बेटा. Let us move to 9th sum guys. Find the area and perimeter of A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F बेटा. ठीक है. And the perimeter also we have to find. Where AB is 5 centimeter and EF is also 5 centimeter. बेटा जब भी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं ना, it is called isosceles trapezium. It is called isosceles trapezium बेटा. AF कितना बेटा? 6 centimeter. Okay. ये 12 centimeter. ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. वी हैव टू फाइंड द एरिया. बेटा ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए अगेन वी नीड टू फाइंड हाइट. ये हाइट ढूंढना पड़ेगा बेटा. सिंस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब नॉन पैरेलल साइड इक्वल है बेटा. ठीक है बेटा. तो ये जो लेंथ है बेटा BL and ME will also be equal because these two triangles become equal. But these two triangles become equal by RHS test. These two triangles become equal by RHS test. These two triangles become equal by RHS test. ठीक है. मैं बताता हूँ आपको कैसा आया. These two triangles become equal by RHS test. देखो बेटा राइट एंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है एंड हाइट इज ऑलवेज इक्वल बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. ठीक है.
सो टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर BL एंड ME आर इक्वल बेटा, ठीक है। सो अगर ये 6 है बेटा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसको मैं x और x ले लूँ बेटा, ठीक है। सो BE इज मेड अप ऑफ x प्लस 6 प्लस x, सो 12 इज मेड अप ऑफ 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये अपना फर्स्ट स्टेप हुआ। ये x और ये x परपेंडिकुलर लाइन बना, ये x और ये भी x बेटा, ठीक है। सेकेंड स्टेप बेटा, हाइट फाइंड करना है। मेन अपना टारगेट इन द एंड हाइट ही फाइंड करना होता है बेटा। ये 5 है और ये अपना 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। BLA। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखने का, बाय पाइथागोरस थ्योरम 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 8 स्क्वायर, 8 square equals to 16, h is 4 centimeter. Okay, I am repeating first step and second step again बेटा। हम लोग ने ये पैरेलल लाइंस बनाई, ये डॉटेड लाइंस परपेंडिकुलर हाइट बनाया, ये क्या बनाया बेटा, परपेंडिकुलर बनाया। वी नीड टू फाइंड हाइट, तो हाइट बनाया ये ऐसा, ठीक है बेटा। ये नॉन पैरेलल साइड है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है बेटा। ओके, गॉट इट बेटा। ये 5 है तो ये भी 5 है बेटा, परफेक्ट बेटा। ये हाइट है, ये भी हाइट है, एंड बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री, ठीक है बेटा। देयरफॉर वी कैन से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसलिए उसका ये लेंथ भी इक्वल हो गया। मैंने इसको x और x लिया, सो x प्लस 6 प्लस x इज इक्वल टू टोटल 12 सेंटीमीटर। वी गॉट x as 3 सेंटीमीटर, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी फाउंड हाइट as 4 सेंटीमीटर। नाउ सिंपल बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ढूंढ लेते बेटा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है बेटा, AFEB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट h, हाफ इंटू 18 इंटू हाइट h 4, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ वन बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE इज 12 इंटू 4, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर ABCDE इज इक्वल्स टू 36 प्लस 48, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन बेटा, कंफर्टेबल। प्रॉपर डायग्राम बनाओ, लेंथ लिखो, हाँ सब रीजंस लिखो। We'll move to 10th sum now. बेटा अकॉर्डिंग टू मी ट्रेपेजियम में आपको वेरी बेसिक पाइथागोरस थ्योरम ढूंढ के हाइट फाइंड करना होगा एंड देन द एरिया ढूंढना होगा। वैसे वेरी बेसिक सम कैन बी आस्क्ड। 10th वन बेटा, इन अ पैरेललोग्राम PQRS, in a parallelogram P, Q, R and S. PQ base is 25 centimeter, QR is 39 centimeter, and diagonal PR is 56 centimeter. Find its area. बेटा मालूम है हम लोग ने when we started the sum, ठीक है, second sum I guess if I'm not wrong, हम लोग ने क्या बोला बेटा, diagonals of parallelogram divides into two equal triangles। इधर हम लोग उल्टा करेंगे। To find the area of parallelogram, we'll find the area of triangle, फिर into 2 कर देंगे, ठीक है। तो first focus on area of triangle PQR, बेटा, area PQR 25 centimeter, 39 centimeter, 56 centimeter. So A is 25 centimeter, B is 39 centimeter, and C is 56 centimeter. So S is A plus B plus C upon 2. 25 plus 39 plus 56 upon 2 is equals to 120 upon 2, which is 60 centimeter. Okay. Area of triangle PQR is equals to S minus A, S minus B, S minus C. 60 minus A, 60 minus B, 60 minus C.
So you get 5 into 4 into 3, 5 into 7, 7 into 3 into 4. तो 5 बाहर निकला, 4 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, 7 बाहर निकला, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर. Area of parallelogram PQRS will be 2 times area of triangle PQR will be 2 times 420, which is 840 centimeter square. Okay. Diagonals of a parallelogram divides it into 2 triangles of equal area. Fine. Easy sum tha. Can be asked. 11. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पहले लेट अस फोकस ऑन दिस ट्राइंगल बेटा, सी डी बी. दिस इज 24 सेंटीमीटर, दिस इज 18 सेंटीमीटर. बाय पाइथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 324 प्लस 576 which is 900. BD is 30 centimeter. Okay guys, ठीक है बेटा. Area of triangle BDC half into BC into CD, half into 24 into 80. थर्ड बेटा ABD दिख रहा है ट्राइंगल ABD. ये 50 सेंटीमीटर है बेटा, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है. लेट A इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 बेटा. सो 40 प्लस 30 प्लस 50 अपॉन 2, 120 upon 2, which is 60 centimeter. So area is equals to S minus A, S minus B, S minus C. So 60 minus 40, 20, 30 and 10. Okay, so we get 6 into 10 into 10, 600 centimeter square. Fine. Fourth step, area of quadrilateral ABCD will be area of triangle BDC plus area of triangle ABD is equals to 216 plus 600, 816 centimeter square. Guys, got it beta? Such type of sum definitely can be asked. Definitely can be asked. हाँ बेटा, तो अच्छे से करके रखो. We found the area of triangle, both the triangles, and फिर ऐड कर दिए बेटा. एक को हेरॉन्स फॉर्मूला से यूज किया बेटा. ऑलवेज रिमेंबर one more small thing I just forgot to tell you again and again. ठीक है? I told multiple times, but you to remember how whenever right angle triangle is there, 90 डिग्री के आजू बाजू वाली जो साइड होती है ना बेटा, that is your base and height. 90 डिग्री के आजू बाजू वाली जो साइड होती है ना बेटा, दैट इज योर बेस एंड हाइट. डोंट फॉरगेट दैट. 90 डिग्री के आजू बाजू वाली साइड इज योर बेस एंड हाइट. हाँ बेटा.
12th वन बेटा अगेन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है. मैंने क्या बोला था बेटा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है बेटा. So the area of isosceles trapezium is 80 centimeter square. If the parallel sides are 4 and 16. Okay. Find the height and the length of non-parallel side. ठीक है, वो भी कर लेते हैं. So बेटा area of trapezium क्या होता है बेटा? General formula half into sum of parallel sides into height होता है. ठीक है बेटा. Area of trapezium कितना दिया है? 80 is equals to half into 20 into height दिया है. तो हाइट कितना हो जाएगा बेटा? 8 सेंटीमीटर. ओके बेटा, हाइट इज 8 सेंटीमीटर. सेकेंड बेटा, हाँ हाइट इज 8 सेंटीमीटर. हाइट इज 8 सेंटीमीटर. ये हाइट इज 8 सेंटीमीटर. ये 4 सेंटीमीटर. ये पूरा 16 सेंटीमीटर. फाइन. नेमिंग कर लेते हैं हम लोग ABCD. ABCD बेटा. परफेक्ट है बच्चा. हाँ ABC and D बेटा. ओके गाइस, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा. इसको L और M ले लेते हैं बेटा. M और N ले लेते हैं. ठीक है, ये M और N हो गया बेटा. ये 4 है तो ये भी 4 है. As I said, since it's an isosceles trapezium, क्या बेटा? Isosceles trapezium है. कौन सा trapezium है बेटा? Isosceles trapezium. Therefore triangle AMD and BNC will be congruent. लिख दो बेटा. हाँ, since isosceles trapezium, क्या लिखोगे बेटा? Since isosceles trapezium, therefore triangle AMD congruent to triangle BNC by which test बेटा? right angle hypotenuse side test. राइट एंगल है बेटा, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है. ठीक है, एंड देयरफॉर यू कैन से AM and BN आर इक्वल विच इज X. ये स्टेटमेंट लिखोगे तो ऑलवेज इट एड्स वैल्यू. ठीक है, मुझे पहले से मालूम था सिंस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में तो AM and BN हैज टू बी इक्वल. मैं इसको X लेता हूँ बेटा. ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप बेटा, पूरा AB इज मेड अप ऑफ AM प्लस MN प्लस BN बेटा. सो 16 is made up of x plus 4 plus x. 12 is equals to 2x. तो x कितना होगा बेटा? 6 सेंटीमीटर. कितना होगा x? 6 सेंटीमीटर होगा. परफेक्ट बेटा. अभी ये ट्राइंगल ले लो, कोई भी ट्राइंगल ले लो बेटा. DMA बेटा. ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है. सो पाइथागोरस थ्योरम से आपको AD मिल जाएगा बेटा, जो अपने को ढूंढना था. AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 plus 64 which is 100. Therefore अपने को AD which is 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा. ओके, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढना बहुत इजी होता है बेटा. ऑलवेज रिमेंबर इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. बराबर बेटा, और ये हाइट भी इक्वल होगा. तो दिस टू साइड्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री. बराबर, टू ट्राइंगल्स बिकेम कॉन्ग्रुएंट बाय राइट angle hypotenuse side test. right angle hypotenuse side test, and therefore AM and BN became equal. ये प्रॉपर्टी का नाम मालूम है आपको? अगर मालूम हो तो CPCT बोलते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. फाइन. प्लीज गो थ्रू द सम बेटा. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. ये पूरा 16, ये 4, ये 4 तो ये भी 4 हुआ बेटा. करेक्ट बेटा, ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ. ये दोनों इक्वल हो गया x तो ये कितना हो गया बेटा? इधर से इधर 8 सेंटीमीटर. कितना हुआ बेटा? 6 सेंटीमीटर हुआ. कितना हुआ बेटा? 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर. हाइट 8 सेंटीमीटर हुआ. सो पाइथागोरस थ्योरम से यू फाउंड AD विच इज 10 सेंटीमीटर. प्लीज मेक श्योर यू पॉज द वीडियो, रिपीट इट. दिस सम रिपीट इट बेटा. नाउ ऑल सम्स विल बी वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है.
बेटा वी हैव टू फोकस हियर PQRST पे, PQRST, और ये आपका क्या है n है बेटा, ठीक है। PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, वेरी नाइस, एंड इट्स अ रेक्टेंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। फर्स्ट फिगर जैसे किया था ना वैसे ही टाइप है। PQ is 6.5, वेरी नाइस। सिंस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। द हाइट PN is 7.5, इधर से इधर पूरा 7.5, everything is in meters, not centimeter, everything is in meters, ठीक है। The height QR is 5, ये 5 मीटर्स है बेटा, तो ये भी 5 मीटर्स हो जाएगा, ये भी 5 मीटर्स हो जाएगा। पूरा PQ कितना बेटा 6.5, and N is the midpoint of SR, N is the midpoint of SR, N is the midpoint of SR, ठीक है बेटा। Find the length of SR and area, ठीक है। Find the length of SR and then the this one, very easy। देखो बेटा ध्यान से देखो, N midpoint है, my focus is here बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा 7.5 है बेटा, तो ये PN भी 7 point, PN कितना बेटा 7.5, which is made up of PA plus AN, ठीक है बेटा। तो 7.5 is made up of PA plus 5, so PA कितना होगा बेटा 2.5 meters, फर्स्ट स्टेप बेटा। सेकेंड स्टेप APQ बेटा, ये 6.5 मीटर्स है बेटा, ये 6.5 मीटर्स है, PA is 2.5 मीटर्स। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें बेटा, शैल वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बेटा, अप्लाई करें। PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, 6.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5 स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, तो 6.5 कितना होगा 6 7 42, 2 3 6, AQ कितना होगा बेटा 6 मीटर्स होगा, कितना होगा बेटा AQ 6 मीटर्स होगा बेटा, ओके। नाउ सिंस AQ is 6 meter, AQ is equals to RN is equals to 6 meters beta, therefore SR will become 2 times RN, which is 12 meters, easy beta। now first let us find area of triangle PTQ, half into base TQ into height PA, we know it is now 12, ये पूरा इधर से इधर 12 होगा, if SR is 12 तो TQ also will become 12, and PA we know it is 2.5 बेटा, तो 6 into 2.5 कितना होता है बेटा 15 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल is SR into RQ, SR is 12 into 5, 60 meter square, therefore area of figure PQRST is equals to 60 plus 15 beta, 75 meter square। इजी था बेटा। डायग्राम को मैंने डाइसेक्ट करो, ये पूरा 7.5 था हाइट, उसमें से ये 5 था, तो रिमेनिंग हैज टू बी 2.5, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो यू गॉट AQ कितना आया बेटा, AQ कितना आया अपने को बेटा 6 आया, ये 6 तो ये 6 मतलब ये टोटल कितना हो गया 12 मीटर्स हो गया। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, गॉट इट बेटा। चलो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द सम्स, रोम्बस, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रोम्बस के हर सम्स अभी से हम लोग जो करेंगे ओके आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वी कैन नॉट स्किप आउट दिस सम्स, वी कैन नॉट जस्ट स्किप आउट दिस सम। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस के जो भी सम्स है वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। रोम्बस की दो प्रॉपर्टीज ऑलवेज याद रखना, रोम्बस की दो प्रॉपर्टीज ऑलवेज याद रखना, रोम्बस की दो प्रॉपर्टीज ऑलवेज याद रखना बेटा। वन, डायगोनल्स आर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करती है, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल बेटा, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ठीक है। सो 14th वन, find the area and perimeter rhombus whose diagonals measures 18 centimeter and 24 centimeter. So first area of rhombus is very simple, half into diagonal 1 into diagonal 2, half into diagonal 1 into diagonal 2 beta, 216 centimeter square. Second, बराबर बेटा, मैंने क्या बोला था? इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है बेटा। सो 18 will become 9 centimeter 9 centimeter, 24 will become 12 centimeter 12 centimeter, ठीक है बेटा। 18 will get divided into 9 and 9 and 24 will get divided into 12 and 12, ठीक है बेटा। Therefore I can write OB and OD is half of 18 which is 9 centimeter and OA and OC will become half of 24 which is 12 centimeter. Third step बेटा, in triangle AOD बेटा, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है बेटा। So AD square is equals to OA square plus OD square. So 12 square plus 9 square कितना होता है बेटा? 144 plus 81 कितना हुआ बेटा? 225 सेंटीमीटर हुआ। So AD कितना होगा बेटा? 15 सेंटीमीटर होगा। ओके बेटा। So all sides are equal. So perimeter of rhombus is, we all know perimeter rhombus क्या होगा बेटा? 4 into side होगा, 4 into side होगा। So 4 into 15 हुआ, कितना हुआ बेटा? 60 सेंटीमीटर हुआ। Easy बेटा। So area of rhombus is half into diagonal 1 into diagonal 2. Okay? And second most important property कौन सी याद रखोगे? That diagonals of rhombus are perpendicular bisector to each other. मतलब perpendicular भी है and bisect भी करता है, मतलब equally divide भी करता है, ठीक है। ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. ये 20 सेंटीमीटर है बेटा। If total PC is 32 centimeter. Total PC is 32 centimeter. Total is 32 centimeter. Total is 32 centimeter. Okay बेटा। Total PC is 32 centimeter. टोटल PC इज 32 सेंटीमीटर, मतलब इधर से इधर तक टोटल कितना बेटा? 32 सेंटीमीटर। कैन आई से बेटा PC इज मेड अप ऑफ PD प्लस CD, सो 32 इज मेड अप ऑफ 20 प्लस PD, सो PD इज 12 सेंटीमीटर। करेक्ट बेटा। सेकेंड PDA 20 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो बेटा। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, 400 इज इक्वल्स टू 144 प्लस PA स्क्वायर, PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256, तो PA इज 16 सेंटीमीटर। ओके बेटा, PA इज 16 सेंटीमीटर। हाइट कितना है PA का? 16 सेंटीमीटर आया। थर्ड बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस कैन ऑल्सो बी जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ रोम्बस कैन ऑल्सो इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 20 और हाइट अपना कितना है? PA विच इज 16, सो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस इंटू हाइट। हाइट कुछ भी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? हाइट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
Height is your perpendicular distance. Height is what बेटा? Your perpendicular distance. Height is what? Your perpendicular distance बेटा. ठीक है? I am telling you बेटा, rhombus के हर एक sums are very important. So don't skip out. Don't skip out. चल. Let us move to the 16th sum. The perimeter rhombus is 68 and one of the diagonal is 30. Okay, nice. रोम्बस में कौन सा प्रॉपर्टी याद रखना है मेरा बच्चा? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर बेटा. ठीक है. सो पेरीमीटर रोम्बस इज 4 इनटू साइड बेटा. 4 इनटू साइड. तो 68 इज इक्वल्स टू 4 इनटू साइड. तो साइड कितना हुआ बेटा? 17 सेंटीमीटर. तो ये 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. फर्स्ट. देन सेकेंड मैं बोलूँगा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है. परफेक्ट. तो क्या हो जाएगा बेटा? आई कैन से वन ऑफ द डायगोनल इज 30. तो ये अगर सपोज 30 है, therefore I can say OA and OC will become half, which is 15 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. तो थर्ड स्टेप बेटा, कोई भी ट्राइंगल ले लो, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो आप. सब राइट एंगल ट्राइंगल ही है बेटा. ये 17 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे बेटा. Therefore BD becomes last step. Area of rhombus is half into diagonal 1 into diagonal 2 beta. Are you okay बेटा? बेटा ये कॉन्सेप्ट के ऊपर 110% वन सम कैन बी आस्क्ड. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर यू आर थॉरो विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल्स, रोम्बस एंड उसके साइड्स. ठीक है बेटा. चलो सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वे में पूछा है अभी इन द नेक्स्ट सम 17 सम. ठीक है बेटा. सेम कॉन्सेप्ट को दूसरे वे में पूछा है. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, डोंट मिस आउट. If the area of rhombus is 864, area of rhombus कितना बेटा? 864 दिया है. And one of the diagonal D1 दिया है 48 सेंटीमीटर. चलो we all know area of rhombus is first step. area of rhombus क्या होता है बेटा? बोलो. half into diagonal 1 into diagonal 2. half into diagonal 1 into diagonal 2 बेटा. सो diagonal 2 कितना होगा बेटा? 864 डिवाइडेड बाय 24. कितना हुआ बेटा? 24 3 6. diagonal 2 कितना हुआ बेटा? 36 सेंटीमीटर हुआ. कितना हुआ बेटा? 36 सेंटीमीटर. सेकेंड वी नो इन rhombus diagonal bisect each other at 90 डिग्री. ये तो स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है. diagonals bisect each other at 90 degree. bisect each other at 90 degree. Therefore as usual OA और OC कितना हो जाएगा बेटा? half of 48 24 सेंटीमीटर. एंड OB और OD क्या हो जाएगा बेटा? half of 36 which is 18 सेंटीमीटर. देखो डायग्राम भी बना देंगे हम लोग, रफ डायग्राम, सो टीचर को भी पता चल जाए आपके. सो O इधर आएगा बेटा, ABCD बेटा. परफेक्ट बेटा. सो OA और OC हम लोग इसको कितना ले लेंगे बेटा? 24 सेंटीमीटर. एंड OB एंड OD को 18 सेंटीमीटर बेटा. यू कैन टेक एनी वन ऐसा, मतलब आप OA और OC को भी 18 ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डायगोनल. नाउ कंसीडर दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बेटा. OAB बेटा. ये 24 सेंटीमीटर है और ये 18 सेंटीमीटर है. बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर
24 square plus 18 square बेटा, 576 plus 324. So AB is 30 सेंटीमीटर. ठीक है, पेरीमीटर पूछा है, ठीक है, पेरीमीटर पूछा है तो 4 इंटू साइड. पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, so 4 into 30, which is 120. Okay guys, sure, let us do the last sum. Okay, last sum of the chapter beta, but mark this part as very 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 important. हाँ बेटा, rhombus के जो भी sums है ना, very important, don't miss out. Any sum you find it difficult, even after going through the videos, just come down personally, I'll help you out beta. हाँ, but make sure you go through the videos again and again so that you know recall value increases. By Pythagoras theorem, 20 square is equals to 12 square plus AC square. 400 is equals to 144 plus AC square. AC square is equals to 256. Therefore, AC is 16 centimeter. Okay, AC is 16 centimeter. Fine. So now focus on triangle ACB beta. A, C and B, 16 centimeter, 12 centimeter. So area of triangle ABC क्या होगा बेटा? हाफ इंटू 12 इंटू 16 कितना हुआ बेटा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ. थर्ड CDA बेटा, 3 sides are given 17 centimeter, 17 centimeter and 16 centimeter. हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. Let A be 17 centimeter, B is also 17 centimeter and C is 16 centimeter. हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करते बेटा. S is equals to A plus B plus C upon 2 बेटा. तो 17 plus 17 plus 16 upon 2 which is 50 upon 2, 25 centimeter. So area क्या होगा बेटा बोलो? S minus A, S minus B, S minus C. So 25 minus 7, 8 and 9. So 5 into 5, 8 into 8 and 3 into 3 beta. 5 into 8 into 3, 120 centimeter square. Last step, area of quadrilateral ABCD will be area of triangle ABC plus area of triangle ACD. 120 plus 96 which is 216 centimeter square. Okay guys, understood beta? This completes your part 2 of mensuration. I request you all to go through video again and again beta. ठीक है, एटलीस्ट 2 बार देखो, हर एक सम को ऑब्जर्व करो and then you will realize it's a pretty simple sums. ठीक है, it's not a task, just practice is needed. Okay, ये 18 sums करोगे काफ़ी हो जाएंगे to understand the quadrilateral parts. ठीक है बेटा, fine. With this let us stop this video. Thank you so much.